گاڑیاں ٹھیک کرنے والے ایک میکینک نے دنیا کے امیر ترین انویسٹرز کو $1 ارب کا دھوکہ دیا، جو کہ قریب 8,500 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کام اس نے امریکہ جیسے ملک میں رہ کر کھلم کھلا کرنے کی ہمت کی۔ نہ ہی وہ ادھار لے کر بھاگا اور نہ ہی اس نے کوئی بینک ڈکیتی کی، بلکہ یہ سارے پیسے اس نے سولر پینلز بیچ کر حاصل کیے۔ اس کی پلاننگ اتنی خطرناک تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی اس کے جال میں پھنس گئے، پر آخر اس نے ایسا بھی کیا کر دیا۔ کون تھا وہ شخص جو وارن بفٹ جیسے انویسٹرز کو بھی اپنے جال میں پھانس بیٹھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا بھانڈا کیسے پھوٹا؟ ناظرین، کیلیفورنیا کے 36 سالہ جیف کارپوف نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کار ریپیرنگ کا ایک کاروبار شروع کیا، جس میں دونوں بطور میکینک اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا یہ کاروبار ٹھپ ہو گیا اور اب ان کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا تھا۔ جیف کے ذہن میں امیری کا بھوت سوار تھا، لہٰذا وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا۔ اس کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی تو اس نے ڈرگز بیچنا شروع کر دی تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ آہستہ آہستہ اس پر قرض چڑھنے لگا، گھر کا کرایہ اور دیگر بلز ادا کرنا مشکل ہونے لگے، اور ڈرگز بیچ کر یہ سب کرنا بھی اسے اچھا آپشن نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے وہ نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخرکار اسے ایک سولر پینل سیلزمین کی نوکری مل گئی۔ وہ سولر پینل سیل کرنے کے لیے دن بھر لوگوں سے ملاقاتیں کرتا، اور اسی وجہ سے اسے لوگوں کا فیڈ بیک جاننے کا موقع بھی ملتا رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ لوگ سولر پینلز خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ان کے سولر پینلز چوری نہ ہو جائیں۔ جیف کارپوف اسی خوف کو ختم کر کے بہت سارا پیسہ بنا سکتا تھا، کیونکہ اب اسے ایک ٹھوس آئیڈیا مل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے لوگوں کے سولر پینلز محفوظ بنائے جا سکے۔ اگر ان پینلز کو کسی ٹرک یا ٹریلر پر نصب کر دیا جائے اور دن بھر استعمال کے بعد رات کو ان ٹرکوں کو محفوظ مقام پر پارک کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ پلان تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ جیف کارپوف زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، یعنی اس پلان کو کیسے کامیاب بنانا ہے اس کی ٹیکنیکل نالج اس کے پاس نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے اپنے برادر انلا کو رابطہ کیا، جو کہ ایک میکینک تھا۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد دونوں نے ایک موبائل سولر جنریٹر تیار کر لیا۔ یہ ایک فریم پر مشتمل تھا جس کے نیچے ٹائرز لگے ہوئے تھے، اور اس فریم کے اوپر سولر پینلز کو فکس کیا گیا تھا۔ سولر پینلز کو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ لوگ کر کے محفوظ جگہ پر پارک کیا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب پورٹیبل ڈیزل جنریٹرز بھی مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہ بھی جیف کارپوف کے آئیڈیا کی طرح ہی کام کرتے تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ جیف سولر انرجی کا استعمال کر رہا تھا۔ پورٹیبل جنریٹرز کی مارکیٹ $3 ارب کی تھی۔ اس مارکیٹ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یا لوگوں کو ڈیزل جنریٹر سے سولر جنریٹر کی طرف کیسے راغب کرنا ہے، اس بارے میں نہ ہی جیف کو کوئی آئیڈیا تھا اور نہ ہی اس کے برادر انلا کو۔ لیکن قسمت ان پر مہربان تھی۔ ان کی کار ریپیئر شاپ پر واٹسن نامی ایک کسٹمر آیا کرتا تھا، جو کہ خود ایک سافٹ ویئر پروفیشنل تھا۔ جب اسے جیف کی ایجاد کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے انہیں ایک کمپنی بنانے کی آفر کی۔ کمپنی کا نام EDC سولر رکھا گیا، اور اس میں واٹسن اور اس کی ٹیم بھی شامل ہو گئی، جو کہ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ سنبھالنے لگی۔ سب سے پہلے عام پبلک کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے انہوں نے بڑا کام کرنے کا سوچا۔ انہوں نے سب سے پہلے ہالی ووڈ کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ اس وقت مووی سیٹ پر ڈیزل جنریٹرز استعمال کیے جاتے تھے، جو کہ بہت شور پیدا کرتے، اور اس صورتحال میں DC سولر کمپنی کے موبائل سولر جنریٹرز ایک اچھا آپشن ہو سکتے تھے۔ ان کے سولر پینلز استعمال ہونے لگے۔ 2009 میں مشہور امریکن ایکٹر اور فلم پروڈیوسر نے ان سولر پینلز کی تصویر اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی شیئر کی، اور یہ کمپنی کے لیے ایک بڑی پروموشن ثابت ہوئی۔ دوسری جانب جیف مختلف بزنس مین سے ملنے لگا اور اپنا نیٹ ورک بنانے لگا۔ وہ پبلک گیترنگز میں بھی اپنی کمپنی کے بارے میں بتائے بغیر نہیں رہتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیف نے ورلڈ فیمس لا فرم نکسن پیباڈی سے ہاتھ ملا لیا۔ اس دوران امریکن کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس میں ویلیو آف انویسٹمنٹ پر زور دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ جو بھی کاروبار اپنے لیے سولر پینلز خریدے گا اسے 30% پیسے واپس ملیں گے۔ یعنی اگر کوئی کمپنی سولر ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتی ہے تو اس کا 30% اسے حکومت ادا کرے گی۔ یہ کمپنی کے لیے ڈبل منافع تھا۔ سولر پینل سے بجلی کی کوسٹ بھی بچائی جا سکتی تھی،
और 30% हुकूमत से भी वापस लिया जा सकता था। हुकूमत की इस जबरदस्त ऑफर के साथ ही जेफ की कंपनी DC सोलर ने भी एक नया पैकेज मार्केट में मुतारफ करवाया, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी कंपनी उनसे सोलर पैनल सिर्फ 30% एडवांस देकर खरीद सकती है और बाकी 70% किस्तों में अदा कर सकती है। DC सोलर की ऑफर इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसे रद्द नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए के सोलर पैनल्स के लिए 30,000 रुपए एडवांस देकर उन्हें बिक करवाया जा सकता था और यही 30% हुकूमत कैशबैक की सूरत में वापस करती थी। यानी बगैर कोई पैसा खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल्स लगा सकते थे और बाकी का 70% बिजली के बिल में बचत करके आसानी से जमा कर सकते थे। ये एक 1-1 सिचुएशन थी और इससे DC सोलर का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। 2011 में जेफ एक बेसबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था जब अचानक उसे मैसेज मिला कि मशहूर पेंट कंपनी शेरोन विलियम्स ने 192 मोबाइल सोलर जनरेटर्स का ऑर्डर दिया है। यह जेफ का सबसे बड़ा ऑर्डर था, जिसकी कल रकम $29 मिलियन थी। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक भी टैक्स रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और DC सोलर के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता था। जेफ ने नकली दस्तावेजात तैयार करवाए और जाली अदाद शुमार के जरिए अमेरिकन बैंक को ये यकीन दिलाया कि सोलर जनरेटर्स की मांग बहुत ज्यादा है, जिससे वो अमेरिकन बैंक को कायल करने में कामयाब हो गया। अमेरिकन बैंक DC सोलर का पहला फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। बैंक का प्लान था कि अगले चंद सालों में DC सोलर से सोलर जनरेटर्स खरीद कर लोगों को लीज पर दिया करेंगे, जिससे लोगों पर टैक्स और बिजली के बिल का दबाव कम होगा। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन यहां से आगे मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। जो सोलर जनरेटर्स मूवी सेट्स पर इंस्टॉल किए गए थे, इनमें मसाइल आने लगे और वो बार बार बंद हो जाते थे, और ऐसा होना ही था क्योंकि जेफ और उसके भाई ने बगैर किसी तजुर्बे के उन्हें तैयार किया था। हैरान कुन बात यह थी कि अक्सर मालूमात के लिए वो गूगल इस्तेमाल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम सोलर जनरेटर मालिकान की तरफ से शिकायत आने लगी और जब जनरेटर्स बंद हो जाते तो उन्हें दोबारा से डीजल जनरेटर्स पर चिल्लाना पड़ता। जेफ, जो कि असल में एक आम आदमी था, जब उसके पास अचानक बहुत सा पैसा आने लगा तो वो ऐशो इशरत में पड़ गया। उसका ध्यान काम से हट गया और उसने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। पेंट कंपनी शेरोन विलियम्स के पैनल्स की तैयारी भी जारी थी, लेकिन काम की रफ्तार बहुत सुस्त होने के बाइस सिर्फ पहली कतार के पैनल्स तैयार हो सके थे, जबकि डेडलाइन गुजर चुकी थी। धोखा देने के लिए पिछली कतार के पैनल्स को सिर्फ नट बोल्ट्स की मदद से जोड़ दिया गया, हालांकि हकीकत में वो काम नहीं कर रहे थे। जेफ अपनी ऐशो इशरत में इतना मसरूफ था कि उसने एक नया घर और नई गाड़ी भी खरीद ली। जब लोगों को ऑर्डर्स वक्त पर नहीं मिलने लगे तो कोई भी कंपनी उन जनरेटर्स को 5 से 10 साल के लिए लीज पर लेने को तैयार नहीं थी, और तवील लीज के बगैर DC सोलर अपने पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स और लीज पेमेंट्स अदा नहीं कर सकता था। इस सूरत-ए-हाल में जेफ और उसकी टीम ने एक और मंसूबा बनाया। उन्होंने खुफिया तौर पर एक नई स्कीम बनाई जिसमें नए बायर्स की लीज पेमेंट को पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने के लिए इस्तेमाल किया। जेफ न सिर्फ खुद को एक सोलर कंपनी डिक्लेयर करके सरकारी खजाने से टैक्स क्रेडिट की मद में लाखों डॉलर्स ले रहा था, बल्कि फेक डॉक्यूमेंट्स और जाली डेटा के जरिए अमेरिकन अवाम के टैक्स का पैसा भी DC सोलर हासिल कर रही थी। अब बारी थी इस स्कीम को अमली जामा पहनाने की, और उसके लिए जेफ को नए इन्वेस्टर्स की जरूरत थी ताकि उनसे पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को अदायगी की जा सके। वो हर इन्वेस्टर को जाली डेटा दिखाकर यह जाहिर करता कि जनरेटर्स बड़ी तादाद में सेल हो रहे हैं, और इस मकसद के लिए वो बिलावजा जनरेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि डिमांड बहुत ज्यादा है और मुसलसल दर्स हो रही है। इस तरह इन्वेस्टर्स उसे मुनाफा बख्श काम समझकर इसमें सरमाया लगाने को तैयार हो जाते। इस तरह की चालाकियों से जेफ ने शेल कंपनी को भी धोखा दिया और उनसे $76 मिलियन हड़प लिए। 2014 में IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने कंपनी की जांच पड़ताल की कोशिश की तो DC सोलर के लीगल नुमाइंदे ने हर तरह से IRS को मुतमईन किया और कंपनी को बचा लिया। पूरी कंपनी अब इन्वेस्टर्स को मुतमईन करने के लिए एक स्कीमर बन चुकी थी। हकीकत में जनरेटर्स फरोख्त नहीं हो रहे थे और आवाम से पैसा कंपनी में नहीं आ रहा था, लेकिन इन्वेस्टर्स से मुसलसल पैसे लिए जा रहे थे।
जेफ को मजीद बड़े इन्वेस्टर्स की तलाश थी और खुशकिस्मती से वैली नेशनल बैंक $76 मिलियन का सोलर इक्विपमेंट खरीदना चाहता था। उन्होंने ऐसी कंपनियों की फहरिस्त मांगी थी जो लीज या किराया पर सोलर जनरेटर्स फराहम करती हैं, और इस लिस्ट में डीसी सोलर का नाम भी शामिल था। इस लिस्ट में लिखा गया कि डीसी सोलर अपने 80% जनरेटर्स रेंट पर देता है, हालांकि हकीकत में ये तादाद सिर्फ 5% थी। वैली नेशनल बैंक भी इस धोखे का शिकार हो गया। इसी तरह जेफ कारपाफ ने मशहूर इंश्योरेंस कंपनी गाइको को भी अपने चुंगल में फंसाया। ये कंपनी बर्कशायर हाथवे की एक ब्रांच है, जिसके मालिक वॉरेन बफेट दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। यहां सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे धोखे में आ गई। इसके लिए भी जेफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने अमेरिका की बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टी मोबाइल के एक मुलाजिम को रिश्वत देकर एक जाली दस्तावेज पर दस्तखत करवाए, जिसमें लिखा था कि टी मोबाइल अगले 10 साल के लिए डीसी सोलर से 1000 जनरेटर्स लीज पर ले रही है। जब आपके पोर्टफोलियो में टी मोबाइल जैसी बड़ी कंपनियां हों तो बाकी कंपनियों के लिए एतमाद करना आसान हो जाता है। गाइको ने भी 3 साल का मुआहदा साइन कर लिया, जिसके तहत 8000 जनरेटर्स खरीदे जाने थे, जिसकी कल लागत $1.2 बिलियन थी। इस डील से इब्तिदाई तौर पर गाइको को भी फायदा हुआ, क्योंकि वो 30% यानी $377 मिलियन टैक्स में बचा रहे थे। लेकिन हकीकत में उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न और लीज पेमेंट्स देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इस वक्त जेफ की अय्याशी उरूज पर थी। इसने बेशुमार विलास 100 से ज्यादा गाड़ियां और प्राइवेट जेट भी खरीद लिया था। अब डीसी सोलर का नाम नेसकार में भी पहुंच चुका था और डीसी सोलर की स्पॉन्सरशिप कार्स पर भी नजर आने लगी थी। कोई भी जेफ को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन अब कुदरत ने जेफ की रस्सी कसना शुरू कर दी थी। डीसी सोलर के एक मुलाजिम ने कंपनी का भांडा फोड़ दिया, जिससे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस धोखाधड़ी का पता चलना शुरू हुआ और फराड साबित होने पर जेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि जेफ कारपूफ सोलर जनरेटर्स बेचने की आड़ में पवंजी स्कीम चला रहा था, यानी नए इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को देता था। इस किस्म की पवंजी स्कीम सिर्फ शुरू के ही चंद सालों तक चलती है, लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर्स आना कम हो जाते हैं तो असल मसला शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में कंपनियां रातों रात भाग जाती हैं या फिर कंपनी के मालिकान पकड़े जाते हैं। जेफ कारपूफ ने अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ $बिलियन की पवंजी स्कीम चलाई। उन्होंने 17,000 सोलर जनरेटर्स बनाए थे, लेकिन ये सब सिर्फ कागजों में थे। इन्वेस्टर्स को जाली जीपीएस ट्रैकर्स दिखाए जाते थे कि देखें हमारे इतने सोलर जनरेटर्स मार्केट में चल रहे हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो जीपीएस ट्रैकर्स असल में जनरेटर्स पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर जमीन में दफनाए गए थे। नवंबर 9, 2021 को जेफ कारपूफ को 30 साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ इसकी बीवी और 5 और लोगों को भी इसी स्कीम में मुलव्वस होने पर सजा दी गई। उम्मीद है कि ज़ैम टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।